Assalamu alaikum. Dear students, hope you will be fine. Today we are solving exercise 1.2. The exercise 1.2 based upon only one formula that is called quadratic formula that I write here. Mostly students make rata of this formula and they easily solve exercise 1.2, but these types of students feel difficulty in exams only when examiner asks a question that I write here, prove quadratic formula. As they do not practice to prove quadratic formula, that's why they feel difficulty in this type of question. But they can easily solve exercise 1.2 because only this formula we use in exercise 1.2. This question prove quadratic formula also asks in second way, that is derive quadratic formula from standard form of quadratic equation. These two questions are same, but the way of asking is different. So quadratic formula is x is equal to minus b plus minus b squared minus 4ac divided by 2a. This formula we apply in exercise 1.2 and solve all questions. So exercise 1.2 is so easy. So but first of all we prove quadratic formula, because if examiner asks these types of questions, then you feel do not difficulty in proving quadratic formula. So first of all we prove quadratic formula, then we start exercise 1.2. We derive quadratic formula from standard form of quadratic equation. We know that quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया है, जो कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करते हैं. यहाँ पर भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. वहाँ पर पहला स्टेप्स हमने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम 1 बनाते थे. यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है. 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे. जब a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई a प्लस c डिवाइड बाई a दैट इज इक्वल टू 0. कौन से स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूले में अप्लाई करते थे. a से a कैंसिल, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स प्लस c ओवर a दैट इज इक्वल टू 0. स्टेप 2 में क्या करते थे हम कि जो x का कोफिशिएंट है, जो कि यहाँ पर क्या है b ओवर a, उसको 2 से डिवाइड करते थे या 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करते थे, एक ही बात है. तो जब हम b ओवर a को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है. थर्ड स्टेप में क्या करते थे, हम कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाते थे. तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए. फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हम यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, b को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b, एंड वी मल्टीप्लाई 2 एंड a वी गेट 2a. We take square of this term and add on both side. इस टर्म का स्क्वायर लेकर बोथ साइड पर ऐड कर देते थे. तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स एंड प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर. हमने b ओवर 2a होल स्क्वायर को बोथ साइड्स पर क्या कर दिया है, ऐड अप कर दिया है. नाउ here it can be in the form of, it is in the form of a square plus 2ab plus b square. I write it again, like you can write it as a x square plus 2a is x, b is b over 2a and b over 2a whole square. ये एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है. इसको हमने यहाँ पर क्या बनाया, ये एक्स का स्क्वायर है यानी ए का स्क्वायर.
ये क्या है, b का स्क्वायर है, यहाँ पर लिख दिया b ओवर 2a। बीच में हम क्या लिखते हैं 2ab, यहाँ पर लिखा 2ax था, b हमारे पास b ओवर 2a था, हमने ये लिख दिया। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये टर्म दोबारा आ जाती है, तो मीन्स हमारे पास हम इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं। हियर वी गेट माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर, वी गेट 4a स्क्वायर। नाउ it is in the form of a square plus 2ab plus b square, and this is equal to a plus b whole square, and it also can be written as x plus b over 2a whole square. Plus b over 2a whole square, and here is equal to minus c over a plus here we take LCM of a and 4a square. When we take a and 4 LCM of a and 4a square, we get here 4a square. 4a square divided by a, we get 4a, and when we multiply 4a by c, we get minus 4ac. यहाँ पर हमने इन दोनों का LCM लिया, जो कि क्या आएगा 4a square आएगा। जब हम इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एक a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 4a। 4a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4ac आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 4a स्क्वायर, जब 4a स्क्वायर से डिवाइड होगा 1 जवाब आएगा, 1 जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया है। a हमारे पास x है, b हमारे पास ये वाली टर्म है। जिस तरह से ये हमने क्लोज किया था फार्मूला, इसको भी क्लोज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने तो x की वैल्यूज फाइंड करनी है, बट यहाँ पर तो उसका x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर हम क्या लगाते होते हैं, प्लस माइनस लगाते होते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस b ओवर 2a, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस, आई राइट प्लस टर्म फर्स्ट and minus term as a second, and when we take square root of 4a square, we get here 2a. Now this is plus b over 2a, we write minus b over 2, I write here now x is equal to plus minus b square minus 4ac divided by 2a, here we take square root, and plus b over 2a become minus b over 2a on the other side of equal. Now we take LCM. When we take LCM, we get 2a, and here we get plus minus b square minus 4ac minus b. अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, वो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म को पहले लिख लेते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको क्या कर लेते हैं, बाद में लिख लेते हैं। और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, x है। और दिस इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट वी ड्राइव फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको एक दफ़ा दोबारा सम अप कर लेते हैं। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो स्टेप्स अप्लाई करेंगे। उन स्टेप्स में हम क्या करते हैं, पहले जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसको 1 बनाते हैं, उसके लिए हमने a से डिवाइड कर लिया सबको ताकि 1 बन जाए। फिर सेकंड हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, उस स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड कर लेते हैं। फिर हमने इस स्टेप में क्या किया, एलसीएम लिया 4a स्क्वायर और a का, और मजीद इसको सोल्व करते गए, हमारे पास ये टर्म आई, फिर हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया अगले स्टेप में, और इस तरह से हमने इसको प्रूव किया है। एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now we solve question number 1 of exercise 1.2, that is 2 minus x square is equal to 7x. You can see it is not in the standard form. First of all, we write it in our standard form. In standard form, there is a 0 on the right side of equal. So here minus x square plus 7x become minus 7x, and I write constant in the last. The coefficient of x square usually we use plus, so that's why I multiply, I take common -1 on both sides, and this -1 will be divided on the other side, and remaining will be x square plus 7x minus 2 is equal to 0.
As the standard form of quadratic equation is, you know that ax squared plus bx plus c is equal to 0. We compare this equation by standard form. जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का वो a होता है. यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोई नहीं है, मीन्स 1 होगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. x का कोफिशिएंट क्या होता है, हमारे पास b होता है. यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा. लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है जो कि हमारे पास क्या है, -2, c इज इक्वल टू -2 आ जाएगा. नाउ वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस b, सॉरी, the quadratic formula is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Now we put the value of b, that is equal to minus 7 plus minus, we take the square of b, 7 square minus 4a is 1, c is minus 2 divided by 2a, a is 1. क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है. हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा इस इक्वेशन को, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये होती है. उसको हमने उससे कंपैरिजन कर लिया, तो हमारे पास ए बी सी की कंपैरिजन से वैल्यूज आ जाती हैं कि जो इसका कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, कोई नहीं है तो मतलब 1 है तो ए इज इक्वल टू 1. एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, 7 है तो बी इज इक्वल टू 7, और कॉन्स्टेंट को क्या लिख दिया, 2. उसकी जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, और ये आप क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे. नाउ -7 plus minus 7 square, you know that is equal to 49, and minus minus plus 4 multiplied by 2 we get 8, 2 1 the 2. Now -7 plus minus 49 plus 8 is equal to 57, so I write here 57 divided by 2, that is equal to x. एंड अगर हमारे पास 57 का या कोई भी अंदर टर्म आती है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो हम उसका स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. 57 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया. नाउ वी राइट सॉल्यूशन सेट एज वी राइट इन एक्सरसाइज 1.1, एंड दैट विल बी इक्वल टू -7 plus minus is equal to 57 divided by 2. Now question number 1 of exercise 1.2 is solved. You can solve from question number 2 to question number 5. So these remaining 4 questions, try yourself. Next we start from question number 6 to question number 10.